dear students, hope you are doing well. In this video, we are going to solve one question of para completion that was tested in CAT 2022. So let's get started. My name is Juhi Narula. Para completion was a new question introduced earlier in the previous years. We were not seeing this question. Now we are not sure whether it is going to appear in 2023, but usually the trend that we observe in CAT exams is that if a new question is introduced, it is not very easily weaned out, right? So there's a good possibility that the question can reappear again. So let's see what is a para completion question. So as we see that the name suggests that there is a paragraph that needs to be completed. Now there can be two possible ways to ask the question. One, you are given the paragraph and it is expected that you place the sentence one which can be either given in right in the beginning, and you are asked that what can be the placement. That was the format of CAT 2022. So there was a paragraph provided and then at multiple places numbering was given and you were asked that what is the best place to insert the given statement. So a sentence was provided and then in the paragraph there were multiple positions labeled. So see whether you can insert this given statement at position 1, at position 2, at position 3 or at position 4. This is one way of testing the question. Other could simply be, which will rather be more challenging, that you are given a dash in the middle of the discussion and then 4 statements are provided and you need to see out of these 4 statements which can fit in the blank. This could also be a version or a variation of a para completion question. Now the blank can appear right in the middle of the discussion or the blank can appear at the end of the discussion. So you need to see that whenever we are inserting the statement, either it provides continuity to the previous idea. So if the previous idea is introduced, the new sentence that you are going to insert at a particular position, what that particular sentence should do is build on the idea, right? So say for instance, we are inserting a statement here and there's a previous sentence that talks about that there are limitations of some particular theory. So what is usually expected is that the coming sentence, the following sentence will talk about more limitations, would gradually develop that idea. So here it could be that the previous idea is, the sentence is trying to build the idea. So building of the idea could be one intent, right? Or providing continuity, right? So this could be the intent, or it could be the other way around, that the statement that you are inserting is acting as the base for the following statement, right? तो अगर हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को डेवलप कर रहा हो या स्टेटमेंट 3 के लिए एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की तरह काम कर रहा हो, एक बेस की तरह काम कर रहा हो. सो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज द बेस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इट कुड बिल्ड और डेवलप द प्रीवियस आइडिया. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द सेंटेंस, राइट? तो आपको सेंटेंस क्लैरिटी होना जरूरी है. इफ वी स्टिक टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन CAT 2022. So there was a paragraph, there were 4 possible positions suggested and you need to insert the given statement, right? तो उस केस में आपको पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छे से सेंटेंस पढ़ लीजिए क्योंकि सेंटेंस आपको ये बता देगा कि उसका गोल क्या है, right? What is the intent of the statement? What is the information the sentence is conveying? And then we can see that where would be the best placement. Like I said that there could be 2 possibilities. One, that you are basically building the previous idea or you are acting as the base for the coming statement if the sentence has to be inserted in the middle of the discussion. It could also be the case कि अगर statement का placement बिल्कुल end of the discussion में होता है, end of the paragraph में होता है, तो वो एक conclusion की तरह भी काम कर सकता है. तो हो सकता है कि वो आपको बता रहा हो कि what was the entire discussion all about, or it could again be an extension of the previous idea, right? So be very clear with what the information the sentence is conveying. Be very clear with what is the gist of the discussion the paragraph is offering, right?
सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स टू कीप इन माइंड? एक तो आपको स्टाइल ऑफ राइटिंग पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टाइल ऑफ राइटिंग से ही बहुत इजीली क्वेश्चन क्रैक हो जाता है. सो डू अंडरस्टैंड कि ऑथर किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रहा है पैराग्राफ का. स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मतलब हाउ द स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, राइट, हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट. एंड टोन इज हाउ इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट. अब अगर आप टोन की बात कर रहे हैं तो एट टाइम्स हम बहुत फैंसी टर्म्स पे नहीं पहुंच पाते. भाई मैं तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूं जब मैं एग्जाम दे रही हूं, अब आप मुझसे कह दो कि मुझे एक फैंसी सी टर्म जैसे लॉडेटरी क्लिक कर जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल है, राइट. तो आप क्या करिए, आप गेम को सिंप्लीफाई कर लीजिए. एज आई ऑलवेज से, जितना हो सके कोशिश करिए आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए. तो टोन को आप आइदर ऑफ द 3 कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हो. या तो टोन पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है, या न्यूट्रल हो सकती है, राइट. तो अगर आप इतनी भी क्लैरिटी ले आए कि द डिस्कशन इज हैपनिंग इन पॉजिटिव टोन or in the negative tone or in the neutral tone, this is sufficient to crack the question. ठीक है जी. So once we are clear with how the sentences have been placed, then deciding the placement or deciding the position of the sentence will become easy, right. The next important thing is that while you are picking up the answers, avoid extreme answers. तो जब भी आपको terms मिले, all, always, none, only, must, नेवर, इनको लेकर आप हमेशा सस्पिशियस रहिए. मैं ये नहीं कह रही कि आउटराइटली रिजेक्ट करिए, बट यूजुअली हम एक्सट्रीम आंसर्स अप्रिशिएट नहीं करते. और एक्सट्रीम आंसर्स का एलिमिनेशन यूजुअली वैलिड रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, पैरा समरी में भी, और पैरा कंप्लीशन में भी. बट एक्सट्रीम की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि दैट यू कैन नॉट हैव एनी क्लेम विच इज स्ट्रॉन्गर देन द क्लेम मेड बाय द ऑथर. इन केस दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी वैलिड इन केस यू आर पिकिंग द ऑप्शंस. देयर आर 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड और उसमें से कोई एक स्टेटमेंट आप प्लेस कर रहे हो, राइट. अगर आपके पास एक्चुअल सेंटेंस ऑफर्ड है तो फिर आपको ये वाला चैलेंज तो आएगा ही नहीं, राइट. उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट आप इंसर्ट करते हो इन द गिवन इंफॉर्मेशन, दैट कैन नॉट बी रिडंडेंट. रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम यूजुअली अप्रिशिएट नहीं करते, राइट. और ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो कि मेन आइडिया क्या है. मेन आइडिया मतलब व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, एंड प्राइमरी पर्पस इज व्हाई द ऑथर हैज रिटन द पैराग्राफ. तो अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, राइट. उसके बाद तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अब ट्रांजिशंस. तो मैंने इतनी बार आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ट्रांजिशंस, और मैं आपको हर क्लास में कहती दिखूंगी कि ट्रांजिशंस को नोटिस करिए. इससे क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ईज मिलती है, इससे पैसेज पकड़ने में बहुत आसानी होती है. तो ट्रांजिशंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो बताए कि डिस्कशन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है. हाउएवर, बट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, राइट, ऑल दीज आर ट्रांजिशन वर्ड्स. उसके बाद प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं रिप्लेसर्स. तो रिप्लेसर्स का मतलब वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स. तो अगर मैंने कहीं प्रोनाउन को रेफर किया तो उससे पहले नाउन का रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, राइट. सो इफ आई से शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सो हु एम आई टॉकिंग अबाउट, राइट. शी किसकी बात कर रहा है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी मिलनी चाहिए. तो उस केस में आपका ईजी हो जाता है सेंटेंस का प्लेसमेंट, राइट. दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं दिस, दैट, दीज. तो इन वर्ड्स को भी लेकर ऑब्जर्वेंट रहिए. देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर मैं ट्रांजिशंस की बात करूं, प्रोनाउंस की बात करूं, या डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करूं, आपको बस एक कॉन्शियस एफर्ट करना है इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करने का, राइट. सो इफ यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट, यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू वेरी इजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट. सो नाउ लेट्स एक्चुअली सी वन क्वेश्चन. सो दिस वाज टेस्टेड इन कैट 2022. अब आप देखिए कि यूजुअली VARC से इतना हम डरते हैं, इतने इंटिमिडेट होते हैं, पर ये क्वेश्चन करके हम देखेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चंस डूएबल होते हैं, राइट. इट इज जस्ट दैट वी आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स इन अ माइंड. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन टेस्टिंग. कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें, बी एब्सोल्युटली क्लियर विद द डायरेक्शन. लाइक आई सेड कि पैरा कंप्लीशन मल्टीपल स्टाइल से आ सकता है. एक स्टाइल ये हो सकता है कि आपको पैराग्राफ में एक ही ब्लैंक दे दिया और 4 ऑप्शंस दे दिए और आपको एक सेंटेंस को पिक करना है जो उस ब्लैंक को फिल कर देगा, राइट. दूसरा स्टाइल जो ये वाला स्टाइल है जिसको कैट ने प्रेजेंट किया कि आपको एक सेंटेंस राइट इन द बिगनिंग दे दिया, बस इसी सेंटेंस का इंसर्शन के लिए उसने कहा कि ये 4 पॉसिबल प्लेसेस है, आप बताइए सेंटेंस का बेस्ट प्लेसमेंट इन चारों में से कौन सी पोजीशन पर होगा. सो लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन. डायरेक्शन बहुत तसल्ली से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है एक छोटी सी डिटेल भी अगर आप मिस कर गए ना तो फिर क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो पाता. सो पे अटेंशन टू द डायरेक्शन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट.
तो क्वेश्चन ने कहा कि देयर इज अ सेंटेंस दैट इज मिसिंग इन द पैराग्राफ बिलो। तो ये क्लियरली लेबल करा गया पैराग्राफ और कहा कि एक सेंटेंस मिसिंग है। अब वो कहाँ मिसिंग है ये नहीं बताया, राइट। कई बार क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी वर्जन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी VARC के किसी और OMET में, कि जहाँ पर आपको प्लेसमेंट पता है, ब्लैंक पता है कहाँ पर है, पर आपको सेंटेंसेस को पिक करना है। यहाँ पर द गेम हैज बीन प्रेजेंटेड इन द ऑपोजिट वे। तो द सेंटेंस इज देयर, look at the paragraph and decide in which blank. So either in blank 1 or in blank 2 or 3 or 4 this particular sentence, following sentence would best fit. तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले क्लैरिटी ले लीजिए कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो सेंटेंस अगर हम पढ़ें तो ये कहता है कि हैविंग मेड सिटीजन्स मोर एंड लेस नॉलेजेबल देन देयर प्रेडिसेसर्स द इंटरनेट हैज प्रूव टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। तो इंटरनेट क्या रहा है, ब्लेसिंग भी रहा है और कर्स भी रहा है। तो अगर हम कहें कि इंटरनेट ब्लेसिंग और कर्स था, तो दो तरीके से ये क्लेम को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। या तो हम पहले डिस्कशन करके आए कि देखो यहाँ पर तो इंटरनेट ने बेनिफिट्स प्रोवाइड किए और ये इसके ड्रॉबैक्स थे, और एंड में हम कह दें कि देखो इंटरनेट बोथ क्या है, ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। या फिर हम राइट इन द बिगनिंग डिस्कशन को स्टार्ट करें और कहें कि ब्लेसिंग भी है कर्स भी है, देखो कैसे ब्लेसिंग है, देखो कैसे कर्स है। यानी कि स्ट्रक्चर या तो इस तरीके से रह सकता है कि पहले आपने कह दिया ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है, और आपने लेटर ऑफ द डिस्कशन में उसको एक्सप्लेन कर दिया, या वाइसा वर्सा करा आपने कि आप एक्सप्लेन करते गए और एंड में आपने कंक्लूड कर दिया कि कर्स है या ब्लेसिंग है। ऐसा आप थोड़ा सा प्री थिंकिंग कर सकते हो, राइट। Let's now read the paragraph. So, never before has a population, nearly all of whom has enjoyed at least a secondary school education, been exposed to so much information, whether in newspapers and magazines or through YouTube, Google and Facebook. ठीक है, so यहाँ पर अगर आप देखोगे कि having made citizens more or less knowledgeable than their predecessors, तो इंटरनेट का डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं हुआ है, तो वन डज नॉट लुक टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग पोजिशन। एंड नाउ लेटर इफ वी प्रोसीड फर्दर टू रीड द नेक्स्ट सेंटेंस, सी दिस पर्टिकुलर वर्ड येट। So yet it is not clear that people today are more knowledgeable than their barely literate predecessors. यहाँ predecessors का context आ गया और इस sentence में भी predecessors है, तो अब predecessors introduce हो गया, यानी कि more or less अब आप सोच सकते हो कि प्रेडेसेसर्स के डिस्कशन के बाद हम गिवन स्टेटमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रांजिशन वर्ड आया जिसको लेकर हम बहुत केयरफुल रहेंगे। तो हमने जब येट ऑब्जर्व किया तो पहले सेंटेंस ने कहा कि नेवर बिफोर हैज अ पॉपुलेशन, जिन्होंने नियरली ऑल ऑफ whom has enjoyed at least secondary school, मतलब कभी ऐसी पॉपुलेशन जो usually most of them have been to schools have exposed to so much information, मतलब इतना exposure हमसे पहले जो थोड़े पढ़े लिखे भी थे उसको नहीं मिला। अब whether in कैसी मिली वो information, exposure कैसे मिला, वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, गूगल और फेसबुक। अब देखो यहाँ पर क्या ये येट वर्ड जस्टिफाई करता है? येट मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, या ये सेंटेंस कॉन्ट्ररी या टेक्स द डिस्कशन टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। So yet it is not clear that people today are more knowledgeable than their barely literate predecessors. तो आप देखोगे perfectly sentences are creating a link. तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि शायद हमसे पहले किस जो जनरेशन थी उनको कभी इतना एक्सपोजर नहीं मिला, इस जनरेशन को बहुत एक्सपोजर मिला है। और एक्सपोजर कैसे मिला है? मैगजीन से मिला, न्यूज़पेपर्स से मिला, यूट्यूब से मिला, गूगल से मिला, फेसबुक से मिला। येट पर यहाँ पर उसने बोला कि पर अभी भी हम ये क्लियर नहीं है कि क्या हम मोर नॉलेजेबल हैं किससे, जो हमारे पहले बेयरली, मतलब बेयरली का मतलब हार्डली लिटरेट प्रेडेसेसर्स थे। प्रेडेसेसर्स मतलब पूर्वज। सो वी नो कि यहां पर तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते बिकॉज दीज टू सेंटेंसेस आर इन फ्लो, राइट। सो लेटर इफ वी प्रोसीड वी सी contemporary advances in technology offered more serious and inquisitive students access to realms of knowledge previously unimaginable and unavailable. तो contemporary मतलब present, जो present में technological advances हुए हैं तो उसने क्या किया है, contemporary advances in technology have offered more serious and inquisitive students access
to realms of knowledge previously unimaginable। तो अब जो स्टूडेंट्स के पास जो नॉलेज है, जो स्टूडेंट्स के पास एक्सेस है, वो पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। फिर यहाँ पर एक ट्रांजिशन आ गया और यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्या तुम सेंटेंस को इस प्लेसमेंट 2 पर रख सकते हो। तो यहां पर पहले हम देख लेते हैं कि बट फिर रीअपियर हो रहा है। देखिए ये अगर आप क्लूज ले लोगे ना, आपने येट देखा और आपने देखा हाँ ये दो सेंटेंसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपने बट देखा और आप एक बार सेंटेंस पढ़ लो और देखो कि या तो अगर यहां पर सेंटेंस 2 इंसर्ट हो गया तो इस गिवन सेंटेंस के साथ अपोजिंग जाना चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी रेड कि इंटरनेट ब्लेसिंग और कर्स है। तो अभी तक कोई कर्स के एस्पेक्ट की तो बात हुई नहीं, तो इसके साथ तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा नहीं। तो दैट मीन्स ये प्लेसमेंट भी बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। बट लेट्स सी वेदर दिस इज डूइंग जस्टिस टू द प्रीवियस स्टेटमेंट। बट सच रेडिली अवेलेबल नॉलेज लीड्स मेनी मोर स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम सीरियस स्टडी, the reading of actual text and towards an inability to write effectively and grammatically। भाई ये grammatically वाली तो actually problem है ना। So आप देखोगे कि ये दोनों sentences भी perfectly एक chain बना लेते हैं, right? तो उसने कहा कि पहले तो इतनी information की access ही नहीं थी, पर इसका drawback क्या हो रहा है कि students अब क्या कर रहे हैं, this is taking students away from serious study, right? So yes, this link is already connected। तो हम statement 2 मतलब यहाँ पे place 2 पे भी आप sentence को insert नहीं कर सकते, यानी A and B कैन नॉट बी माई आंसर्स। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इट हैज लेट पीपल चूज सोर्सेज दैट reinforce their opinions rather than encouraging them to question inherited beliefs। तो यहां पर एक ड्रॉबैक बता दिया, राइट? तो आप देखोगे दिस इज अगेन कंटिन्यूइंग द आइडिया। तो इस सेंटेंस ने बताया कि क्या ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स एक्चुअल दे आर नॉट स्टडिंग द एक्चुअल टेक्स्ट और उनको इनएबिलिटी आ रही है टू राइट इफेक्टिवली एंड ग्रामेटिकली, राइट? अब तो क्या होता है कि आपके पास सबके पास ग्रामरली है, राइट? तो कहीं भी थोड़ा सा एरर हुआ और आपने करेक्टली उसको ना क्विकली उसको करेक्ट कर दिया। सो या दैट इज करेक्ट। तो और अगर आप देखोगे कि इट हैज लेट पीपल चूज सोर्सेज, सो अगेन इट इज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस आइडिया। तो अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये ब्लेसिंग और कर्स है और उसके बाद हम एक और लिमिटेशन को प्रेजेंट कर दें, तो आप देख रहे हो जो रिदम ऑफ द डिस्कशन है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएगा। तो यानी कि सेंटेंस 3 में भी आप प्लेस नहीं कर सकते। सो सेंटेंस 3 को आप यहाँ नहीं प्लेस कर सकते। सो इट हैज लेट पीपल चूज सोर्सेज दैट रीइंफोर्स देयर ओपिनियन रादर देन इनकरेजिंग देम टू क्वेश्चन इनहेरिटेड बिलीफ्स। तो हमने सारा डिस्कशन कर लिया और इस डिस्कशन के बाद आपने कहा कि हैविंग मेड सिटीजन्स मोर एंड लेस नॉलेजेबल देन देयर प्रेडिसेसर्स, द इंटरनेट हैज प्रूव्ड टू बी बोथ ब्लेसिंग एंड कर्स। तो कई जगह तो ज्यादा नॉलेजेबल बनाया, कई जगह कम बनाया, एंड देन नाउ इट इज बोथ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। तो यहां पर डिस्कशन को आप एक लॉजिकल एंड देने के लिए 4th इज द बेस्ट प्लेस। सो चॉइस 4 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? सो सी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था। हमने क्या ध्यान दिया, हमने पहले ही देखा कि मोर और लेस जो स्टेटमेंट ऑफर्ड है वो कैसे बिहेव कर सकता है। तो या तो वो ऐसा बिहेव कर सकता है कि वो शुरू में आ जाए और लेटर पूरा डिस्कशन एक्सप्लेन करे कि कैसे ब्लेसिंग है और कैसे कर्स है, या वाइसा वर्सा पूरा एक्सप्लेनेशन, जो एक्चुअली इस केस में हुआ जहाँ पे उसने डिटेल में डिस्कशन किया और उसके बेसिस पे इस कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया कि इंटरनेट इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, एंड हाउ द एंटायर discussion is explaining, right? So option 4 will be the correct answer। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे क्विकली कर सकते हो, आपको पहले सेंटेंस पढ़ना है, सारे ट्रांजिशंस को इफेक्टिवली देखना है। ट्रांजिशंस आपने देखा होगा डेलिबरेटली, ये क्वेश्चन देयर वर 3 क्वेश्चंस, राइट? slot 1, slot 2, slot 3। दिस क्वेश्चन आई डेलिबरेटली picked to tell you that how yet and but played a crucial role in making the game simple। So I hope you really enjoyed solving the question. I hope you found it easy। So now what is your homework? Please solve the other 2 questions which have been asked from para completion, right? Take good care of yourself, work very hard. All the best, take care.